task number 179. So let's start with group task number 179. And let me first tell you what are the rules of this group task. In group task, you will be given a problem which you have to solve. And since it is a group task, all of you are to behave as a team. It is not a group discussion, not the check of your communication. It is the check of your teamwork and solution finding your capability. So the way you give me inputs or a valid point, that will be the real knowledge check from your side, and you will get credit for that. Now, if you create chaos or if you do not listen to others, then entire group loses. So one by one, you have to give your points. This are only 7 people. There's a perfect group size, and everybody will get time, and you have to give your inputs so that everybody is in position to speak, and at the end you give me good solution. Now let me bring this task 179 on your screen. This is the task on your screen. So NRL has adopted a village to develop it as model village, where all modern amenities are provided with good quality of life for people. The most important part to make this development as sustainable is to find the means to enhance the sources of the income of people in the village to make it sustainable. It is decided to develop the rural tourism in the village. That is the main objective, rural tourism. Village is located 50 km 50 from the big city. You are assigned the task to suggest what kind of rural infrastructure needs to be developed in the village to fulfill these requirements. Also, you have to suggest the steps to be taken to make the promotion of this village. So I want to develop this village as model village for rural tourism. All the facilities are to be done, and people should earn money so that they become self-sustainable. That is another thing which we have to think of. Give yourself a couple of minutes, write it, and then we start it.
Okay. So now you have noted down the entire case study. Now you will get 15 minutes, 15 minutes to put your points. Remember that there is no special marks for starting or concluding. You need to speak very smoothly and give valuable points. And keep noting down the important points so that you can conclude later. Abhishek, please unmute yourself so that we can start. Okay. Now I ask each one of you to go and start your now task. Please go ahead. Good evening, friends. My name is Roshan Dudhe, and this is very good and convincing topic. Today's topic is we have to develop the village, and it is very recent topic that companies are doing. And I would like to start GT. First, my think is I would like to add is if we if we have to develop some village, the first main priority you have to develop is road construction in the village. You have to look at the where the if the road is proper in the village and connect every part of the village or not. And the second point I want to add is the village. We have to promote the village side production, such like the in the many village the bamboo products are made, and we have to promote that product. So so if there is some speciality in the village, you find if there is kind of some liquor are made from the village, you have to promote the production of that liquor with permission of the government. In many village there are liquor made from mohan that is very special there, and some village there is silk sari special. So we have to find the speciality of that village, and we have to promote it on the YouTube or the Flipkart or the Amazon platform. That is very easy nowadays. And I would like to add a participant if they want to add some point here. ओके रोशन, थैंक यू। जैसे जैसा कि तुमने कहा है कि ये हमारा गांव जो है 50 किलोमीटर दूर है सिटी से, तो हमें इसमें रोड कनेक्टिविटी तो चाहिए चाहिए। इसके लिए क्या हमारे इसके अलावा हमारे गांव में अपने गांव में टूरिस्ट भी आएंगे, तो उनके लिए एक तो रहने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या गाँव में छोटी छोटी धर्मशालाएं भी खोल सकते हैं, और इसके अलावा जो टूरिज्म आएंगे उनके लिए खाना भी चाहिए होगा। तो जो गाँव का स्पेसिफिक खाना होता है ना, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हमको गांव का डेवलपमेंट भी करना है, तो डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंट के लिए क्या है जो नीड्स चाहिए बेसिक, वो है एक तो एजुकेशन के लिए अपन स्कूल खोल सकते हैं, और एक होती है हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए अपन क्या उसमें हॉस्पिटल का भी निर्माण करवा सकते हैं, जो कि टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, और जो वहाँ के जो लोकल बॉडी है, लोकल लोग हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा क्या है जो अपने जो बाहर के लोग आएंगे उनको इंटरनेट की भी सुविधा चाहिए होगी। तो या तो हम जो पंचायत होते हैं गाँव में उससे कहें कि भाई हमारे गांव में इंटरनेट या फ्री वाईफाई की सुविधाएं शुरू कर दें। तो मेरे हिसाब से ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से पॉइंट है। बाकी जो ओके सो मैं टेक वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें विलेज की सबसे पहले तो हमें केस स्टडी करनी है कि विलेज में आखिर क्या क्या बेसिक चीजें हैं कि नहीं है, क्योंकि हमें सबसे हमारा मेन एम है तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो जब तक हम उसके ऊपर एक अच्छे से ब्रीफ केस स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते। तो हमें सबसे पहले विलेज के बारे में जानना है कि उसके अंदर क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं, जैसे कि वाटर सप्लाई है कि नहीं, रूरल इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, एंड प्रॉपर सप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर वो सारी चीजें फैसिलिटी नहीं है तो हमें सबसे पहले उन चीजों पे काम करना है, और ताकि उनकी एक स्टैंडर्ड जो लाइफ होती है, जो एक शहर से जो रूरल के जो लोग हैं जो उस पे मतलब कि जो उनको नहीं मिल पा रहा है वो सप्लाई, वो बेसिक चीजें उनको उपलब्ध करा जाए। सबसे पहले तो हमारी ये केस स्टडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे आपने पहले बोला कि रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हमें जो बेसिक फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, ये सब भी हमें उस चीज को देखना पड़ेगा। आगे कोई बोलना चाहे? हेलो फ्रेंड। ओके, हेलो, माय नेम इज गौतम कुमार। यस गौतम। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे विलेज को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसका कंडीशन अच्छा नहीं है, उसका एक मॉडल विलेज के रूप में हमें तैयार करना है। तो मॉडल विलेज के रूप में तैयार करना है तो हमें पहले उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन को स्टडी करना होगा। उसके बाद हमें उसका डिस्टेंस हमें मेंशन है 50 किलोमीटर, दिस इज नॉट फार अवे फ्रॉम द सिटी। So first of all, my point is road connectivity is very well, and second is we have to provide 24/7 electricity is very much necessary nowadays, because we have some advantages like a small factory we can also there is like garment factory, and some temple or historical place is there, so that we can build in modern ways.
and we have to also some school and hospital facility we have to provide, so then people easily get, if some problem will come, they can easily hospitalize. Their connectivity is fast. This new technology of hospital, and for tourism sector, I add the point tourism sector for connectivity of buses, and local people also get the job, so enhance your salary and condition of the standing of life. मैं इसमें दो पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि अपने के गांव के अंदर मेनली खेती होती है, तो हम खेती को भी एक टूरिज्म की तरह यूज कर सकते हैं कि हमारे शहरों में काफी लोग हैं जो गांव से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम गांव में ये बोले कि भाई तुम्हारे गांव में आओ और खेती करना सीखो, तो हमारे क्या है, दोनों तरफ से फायदा होगा, हमारी खेती भी हो जाएगी और हम उससे क्या है, खेती के साथ जो पैदावार उसे तो कमाएंगे, लेकिन जो टूरिज्म आएंगे हम उसको खेती कैसे करते हैं वो सिखा के भी कमा सकते हैं। इसके अलावा क्या हमारे गांव में क्या है, जैसे पशु होते हैं जो दूध देते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उनको भी हम बढ़ावा देके जो गांव के लोग हैं उनके आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। Okay, thank you, friend. I am Sumit Kumar. I would like to add some new points. Like my friend says, road connectivity. ठीक है, रोड कनेक्टिविटी तो रोड तो अच्छी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि NRL पैसा दे रहा है हमें रोड कनेक्ट करने का, तो वहां से पैसा तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा। बट वी शुड थिंक अबाउट कि पीपल्स जो गांव में रह रहे हैं या फिर जो बाहर से कहीं से आएंगे, तो उनके लिए इकोनॉमिकल साधन क्या है एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्ट करने का, उनको आने का जाने का। और जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि कनेक्टिविटी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बसेस हो गई, बट जो बाहर से लोग आएंगे, आई थिंक सो कि पीपल प्रेफर लाइक कैब्स एंड ओन टैक्सीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो थ्रू द रोड कनेक्टिविटी, and second thing is that we should connect like cab agencies like Ola, Uber and all, and जो लोकल जैसे कि आसाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो भी वहाँ की होगी, वहाँ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि पहले वहाँ तक आने का जरिया एक अच्छा बन जाए। उसके बाद जैसे कि बोला कि विलेज है, तो विलेज में बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान की, पहले वो तो पूरी होने लगे। जैसे कि भाई ने बोला कि केस स्टडी पहले कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम सोचेंगे क्या क्या नया उनको देना है। तो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जो मतलब जैसे कि पीपल से लाइक दैट। उसके बाद सेकंड, हाँ बोल रहे हैं गौतम। Friends, I want to add some points. Yes, अभिषेक कंटिन्यू। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो उस एरिया से यूनिक चीजें जो बिलोंग करती हैं उन सबको हम एक जगह पे मतलब प्रोवाइड कराएंगे। यू मीन लाइक अ म्यूजियम? नहीं, मुझे लगता है गांव, मेरे हिसाब से गांव इतना बड़ा नहीं है कि हम एक जगह की छोटे गांव। My friends, I think we are missing one very basic point. Please say. Yeah, the sir said that it should be modern village, but it should not be the responsibility of only NRL people. We should educate the people to make the village cleanliness by promoting the courts or something. मॉडर्न तो बनाना है, लेकिन साथ में टूरिज्म को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर को देना होगा, उसके जो गांव में चलता होगा उसके प्रोडक्ट का, उसका सर्विस सेंटर बनाना होगा, वहां से प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो मतलब डिफरेंट हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब all that thing possible we have क्रिएट कर सकते हैं। मतलब छोटा जो मार्केट, educate the basic people to make the cleanliness is the okay friends, I would like to add some things. Hello, yes बबलू। देखो, जैसे हमें क्या करना है कि इस विलेज को डेवलप करना है टूरिज्म के लिए, तो उसके लिए एक पूरी प्रोसेस हमें इस तरीके से बनानी चाहिए। सबसे पहले टूरिज्म के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गाँव को डेवलप करना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कई सारे साथियों ने अभी सलाह दी कि यूनिक चीजें जितनी उनको वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा कोई म्यूजियम या पार्क जैसा बनाया जा सकता है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चर चीजों को पुरानी को दिखा सकते हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ टेक्निक जो पुरानी है जो लोगों को अट्रैक्ट करें। इसके अलावा वहाँ एग्रीकल्चर एग्जीबिशन भी लगाया जा सकते हैं जहाँ दूसरे लोगों को खेती की नई टेक्निक सिखाई जा सके। इसके अलावा किसी ने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट हम पशुपालन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेट मी कंटिन्यू दिस एंड ओके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट डेवलप करना हो गया, यहाँ से हम लोगों को कई सारे इनकम के सोर्स भी दिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हम लोगों को वहां से इनकम सोर्सेस में क्या भाई बताने एक बार। इनकम सोर्सेस में सबसे पहले ये आता है कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बोला है कि हमें मॉडर्न विलेज बनाना है, तो आई डोंट थिंक सो कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए।
नहीं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। गांव में नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर No, को ध्यान we नहीं दोगे should तो we कुछ should लगेगा promote the गांव का agriculture डेवलपमेंट ही output एग्रीकल्चर like पे yeah, डिपेंड we है। should promote this agriculture village output bajra नहीं is कर सकते। special. देखिए, This village yeah, jowar is definitely. very अगर हमें special. a special करना है। product that You know, can you purpose know, in in different Maharashtra, platforms. Hapus mango get the GI tag. So Yeah, yeah, GI tag is the attraction for the tourists that the people are there only to eat the Hapus mango or the पर some kind पर of the chawal in Bihar that got a पर GI tag. पर Or Kadaknath, Kadaknath hen. Kadaknath, yeah, okay, Kadaknath hen I got got it. GI tag. You can GI start the tag production I- of Kadaknath and ओके फ्रेंड्स, I'm हमको क्या है totally agreed फाइनली with you, Karthik. कंक्लूड Hello, निकालना पड़ेगा, तो रोशन? हमें एक एक Yes, yes, पॉइंट करके Gautam. तैयारी करनी, मतलब बोलना चाहिए कि एक तो हमारा रोड कनेक्टिविटी हो जाएगा। सबसे पहले तो रोड Yes, कनेक्टिविटी road अच्छी होनी चाहिए। connectivity. दूसरा मेरे हिसाब से एक इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए गाँव के अंदर, जिससे बाहर के जो लोग आए ना तो वो इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि अब बता रहे हैं कि एनआरएल के नियर बाई में है, तो 15 किलोमीटर की रेंज है, तो आई डोंट थिंक सो कि वी डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन। नहीं ऐसा नहीं है। नॉट दिस this point should be considered whether there is internet connection or not. इंटरनेट कनेक्टिविटी Yeah. अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो Yeah. पॉइंट हो सकते हैं, तो रोड So, कनेक्टिविटी होगी, Yeah, I totally agree with you, Gautam. और दूसरा क्या है, एक और है कि हमको क्या, एक तो यहाँ तो हमको उसके आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए यहाँ तो हमको खेती को एज ए टूरिज्म के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। और रोशन at starting you added point like that bamboo project and Yes, F62. और भी लोगों को मिलना चाहिए। once a minute, मैं देख रहा हूँ कि 2-3 let लोग me ही continue. काफी Yes, Sumit Kumar, please continue. let me continue. Roshan, as you say in starting, bamboo product, liquor and silk sarees, and so then why should we connect all these things and put it a advertisement on internet like that ki all the Assam's things like which are famous in Assam and are at certain place in a village. देखिए, एक जगह मतलब उनको लाके मतलब एक जगह लाया गया कि हर एक कोने मैं कोने से basic आसाम के सा सारे चीज- प्रोडक्ट्स को, और वहां पे मैं मतलब एक कि हम बेच रहे हैं वहां Yes. पे, हाँ, और बेचने का मैं सुमित, एक तुम सही बेसिक कह रहे हो। चीज बोलना चाहूंगा। मैं एक बेसिक हाँ, चीज बोलो। बोलना चाहूंगा। देखिए, टूरिज्म आपका कहीं भी, आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में देख लीजिए, टूरिज्म आपका तभी होता है जब कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमें कुछ Okay. न कुछ नया आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। चाहे आप कोई स्टैचूज ले लीजिए या कोई साइंस सिटी ले लीजिए। Okay. zoological park ले I लीजिए। think so. As the topic is that to develop the infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना, हमको टूरिज्म Development of infrastructure. हम शायद वहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही पूरा घूम गया है। हम वहाँ पे यार देखो, friends, अगर मतलब एक विलेज में हम मतलब उतना ज्यादा इनपुट लगाएंगे, एक स्टैचू बनाएंगे 3000 अप्रोक्स लाइक सरदार नहीं, वल्लभ भाई पटेल it's- स्टैचू। No, no, वैसे no, feeling खत्म हो जाएगा। it's a waste of नहीं money. कर सकते। नॉट आवर क्योंकि हमको एनआरएल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ने टूरिज्म को जिम्मेदारी बढ़ाना है, ली तो है मतलब कि वहाँ हमें- पे उसका जो भी प्रोडक्ट है, जो ही हाँ, सपोज उसको बढ़ावा देना टेक पड़ेगा। एग्जांपल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट like a fruits product, हाँ. some dairy product, so we have to advertise that product in market by Okay. different Yeah, platforms. definitely. So I want to add one That's a point good idea. and want to take opinion of everyone. Look, my friends. सेटअप कर सकते हैं। Yeah. उसके बाद Yeah. जो भी उसका Can product we- है, वो We have to वहाँ sum पे up all the कम points करने first of के all, लिए then we will discuss facility further. सर्विस सेंटर दे सकते हैं, उस कनेक्टिविटी दे सकते Roshan, हैं। Yes. can you get me? First of all, you should summarize the and collect all the point and Yes, I let you collected all the points. discuss on the further. Yes, so I want to add one point. Just everyone said that it should be promoted. I want to ask everyone: is it possible? If we, can we promote on YouTube by some YouTubers, by asking some YouTubers? Can we promote it on Amazon, selling product? That this is the special Assamese honey, or this is the special bees honeys from the Assam, or can we promote it on Flipkart or e-card services? Yeah, And definitely. we can promote it on the nearby. डेफिनेटली है। मुझे लगता है E-card service ये एक परफेक्ट चॉइस नहीं है यार। So ये please continue your view on this point. Can we do something for promotion? प्रमोशन के लिए हम Yeah, कर सकते हैं, लेकिन हमको अमेजोन या फिर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमको सबसे पहले तो Then- बेसिक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। So, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, as- पहले as- point as- हमने as saying- discuss करा है। one important चीज, Pankaj, one by one point आपको करने बोल की रहे जरूरत हैं। है हमको। Pankaj, continue. ओके, तो क्योंकि देखो अगर हमें रोड कनेक्टिविटी NRL बात की हो वो चुकी जो है, रूरल दूसरी बात हो विलेजेस चुकी है हैं, इंटरनेट अगर हमें कनेक्टिविटी पे। इसके अलावा हमको Yes, स्कूल और Pankaj, I can't हॉस्पिटल, get you. हाँ, इसके अलावा हमको स्कूल और हॉस्पिटल पे भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये यस, बहुत यही ज्यादा मैं स्कूल इंपॉर्टेंट है। बोला। और स्कूल और इसके अलावा हॉस्पिटल ऑलरेडी इसके अलावा एडेड जो है। 2 पॉइंट है कि हमारे टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देगा, जिससे कि गाँव शहर के लोग जब गाँव आएंगे तो उनको कुछ नया तो लगना चाहिए कि ये गाँव मतलब गाँव शहर से अलग क्यों है। उसके सिर्फ एक तो सबसे बड़ा जो अलग करता हुआ है, खेती करती है गाँव को। दूसरा होता है जैसे कि रोशन ने बताया कि एक आर्ट हो सकती है वहाँ की, जैसे बैम्बू से कुछ बना रखा है,
उसको हम Yes, शेयर yes, कर yes. सकते हैं। So you हमको are इन पॉइंटों पे completing सोचने की the जरूरत है और हमको कंक्लूड निकालने की जरूरत है कि काफी टाइम हो चुका है। Pankaj, you are considering it a way देखिए of income for the हर एक village. गांव की अपनी स्पेशलिटी होती है। Pankaj, what you said, school, hospital, I write it. It should be school, it should be hospital, water supply, Okay. electricity, internet. What Okay, is the okay. basic? It should be Yes. completed. We are It should moving be further completed. from that. Yes. हाँ तो Hello, हमको Move as Roshan. और हमको धर्मशाला what पे should- भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, Okay. वहाँ पे रहने के लिए Uh, कहाँ रखेंगे हम लोग। what we are और एक doing for गारमेंट the फैक्ट्री income sources स्टार्ट of the करना है village. छोटा, उसमें ज्यादा इनपुट की जरूरत नहीं पड़ता है। We will provide let some me- Yes, advertising Gautam. on railway and also गारमेंट फैक्ट्री airport. जो छोटा छोटा होता है वो So सभी people इंडस्ट्री will come Abhishek, to yes. us. होता है। गारमेंट फैक्ट्री शुरू कर Abhishek, can you be loud? सेटअप में ज्यादा भी पैसा नहीं लगता है। We will provide some advertisements on railway let and him speak. railway Gautam, station and let him. airport. Yeah. Airport and railway station. And go there. Airport and railway station. I don't think it's a good idea. नहीं नहीं, गांव के अंदर तो कहाँ पे रेलवे मतलब एयरपोर्ट कहाँ बना सकते हैं गांव के पास? मतलब too much of Nearby. No. What Abhishek want to Nearby. say is Nearby. whatever we are producing, it should be advertised by nearby vicinity railway station like Kamakhya. And even tourists come, it should be read the name that this is the NRS Okay, supported okay. village Yeah, and it I is agree with 50 Abhishek. kilometer away from it. It's Am I a right, very- Abhishek? It's a very good idea for advertising. Abhishek. हाँ ये कर सकते हैं अपन अभिषेक। Like pamphlet and holdings, such of things. Yeah. अब टाइम आ चुका है कि अपन अपने अपने पॉइंट रखें जो भी अपने फाइनल कराए और We कंक्लूड can also use for advertising like a man who is louding on the mic and saying like that the product over here. Yeah. It is very basic level and cheap type of promotion, but if it helps, that is totally acceptable. It may be help, it may be help. Because of that people need a voice in. Yeah. We can sell some kind of oils in market Yeah. with village name. Discussion is quite funny and interesting. Okay. Yeah. Anyone like to add anything apart from that? So I have number of points. Okay. Do I need to read the points to everyone? And if anyone want to add something, they can add. Okay. I want to add something. 5 more minutes. Roshan. 5 more Okay, minutes. okay. Tourism, Roshan. health and sanitation and health. It is more important that for us. Bablu, उसके लिए हमने Bablu, hospital as we discussed on earlier, hospitals and doctors hospitals are added in. already add or on discussed. हॉस्पिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है यार। Don't think ये about already- don't think about लेकिन this मुझे लगता है एक बार scenario. टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे इस पे भी एक बार बात कर लेनी चाहिए कि हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं गाँव के अंदर। हाँ, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या गांव के अंदर तो फिलहाल जब गांव ही है तो वहां तो हम कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। गांव के बाहर हमको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, जैसे कि पीपल्स अंदर है तो टूरिज्म पीपल्स किस के लिए अंदर आने आएंगे? के अगर सपोज दैट अगर गांव के पास कोई सा भी हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसको हम मॉडर्न वे में बना सकते हैं। कुछ नहीं, space अगर चाहिए गांव के Should पास be in the तो territory of the village, or else it will help other गाँव के village. अंदर गौतम लेट मी कंप्लीट। गाँव के अंदर यहाँ बोलो सुमित तू बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है हम बात कर चुके हैं कि हमें गांव के बाहर बढ़ाना है, तो प्रमोशन हमको गांव के बाहर करना पड़ेगा। एज रोशन से कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन के बाहर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें और कोई एडवर्टाइजमेंट का जरिया लेना चाहिए अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं पर एक प्रॉपर कंक्लूजन ये है कि हम गांव में कर क्या सकते हैं, कुछ नया तो करना पड़ेगा ना एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जैसे रोशन आपने बोला ना कि जो प्रोडक्ट्स है सबसे पहली बात, हाँ हमने एक मेन सिनेरियो जो उस पर सोचा ही नहीं है अभी तक कि पीपल्स की इनकम का सोर्स क्या है वहाँ पे, इसके लिए पहले कुछ सोचो कि मैंने बोला ना कि ओके सुमित मैंने बोला है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं गांव में कुछ नई चीजें अगर हम नई चीजें में बनवाएं क्योंकि सप्लाई इजीली हो सकेगा, क्योंकि जो एनआरएल का जो मेन सिटी है वो 50 किलोमीटर ही है, तो कोई भी चीजें आसानी से जो बड़े शहर से गांव तक इजीली वो सप्लाई हो सकती है। और सुमित लिसन टू मी वन पॉइंट, अगर हम गांव शहर के लोगों को अगर ये हम सिखाएं, मतलब गांव के लोग सिखाएं कि खेती कैसे करते हैं, तो मुझे लगता है काफी लोग होंगे गांव शहर के लोग जो खेती करने में इंटरेस्टेड होंगे। I don't think it's a good idea. I don't think we can promote the rooftop farming just by selling seeds. I think that may little help. That village people have expertise in the farming and yeah.
हम लोग city people गाँव- like the just अदर ground फार्मर्स plants. को सिखा सकते हैं हम As लोग, you- उस गांव as के you अलावा think, कोई दूसरे गांव there is only के जो 5 minutes फार्मर्स left. हैं उनको सिखाने के लिए हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप एक ग्रुप बना सकते हैं, जो भी कुछ नया चीज आया है तो उसके लिए वो ग्रुप बना करके बिल्कुल, फिर वहाँ बाकी नई के लोगों को भी टेक्निक्स ऐड एजुकेट की कर जा सके, सकती है। तो Okay. आगे और वहाँ के फर्दर Are you ready to conclude now? हाँ, Okay, yeah. Yes, sir. Yes, sir. All yes If जो everyone agree जो if agree everyone होता जाएगा agrees, point, should I continue conclude the topic? yo. okay Yeah, Okay, the today's discussion was somewhat in everyone's favor. Few point was in everyone's favor, and few point was not in everyone's favor. But the internet connectivity, water supply, electricity, case study, hospital, school, that everyone favor that point. That should be in the village. And road construction was also the point that everyone supported. It's road construction is the first majority. मुझे लगता है I'm conclude एक को करना concluding. चाहिए। So, Okay. yeah. So to make the modern village, we need all that 5 points. To enhance the development, tourism, we should use e-commerce websites and advertisement on railway station and other mode of advertisement like YouTube's and all that things. And to enhance the tourism, the road construction is very important. Garden We can, construction or simple temple recreation, regeneration is Roshan, important. Can you take one of my point? We should make a film which will promote the all the things. We make a मतलब गाँव के ऊपर this is a conclusion, only one person has to speak, so मैं बस उसमें कुछ point add करने के लिए Okay, बोल रहा हूँ। Sumit. no yeah, you have to add before the conclusion. Okay. No issues. And to earn the money, village, we consider that village people already expertise in farming, liquor production, and that all the only village specified products that should we promote for the tourism. And here we conclude that all that point, if we add from NRL help and the village people help, then we can make the village modern within a few years. Yes, we can think on Done? हो भी सकता है। Yes sir. Okay, so see, conclusion is something which one person should give and others should not interfere in that. So again, I want a conclusion from any one of you, but without interruption from others. Single fellow conclusion. ओके Who wants सर, to go ahead? ओके सर, मैं कंक्लूड करता हूँ सर। हमको क्या है, सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोड कनेक्टिविटी करने की जरूरत है। उसके बाद जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए इंटरनेट की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा और रहने के लिए धर्मशाला खोलने की जरूरत है। अब इसके साथ जब वो आ चुके हैं तो अब उनको मतलब गांव के अंदर आने के बाद उनको अलग करना, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हम उनको बैम्बू से जो सामान बनता है उसको बनाने का तरीका बता सकते हैं, उनको खेती करना बता सकते हैं, खेती हम कैसे करते हैं गांव के अंदर। और इसके अलावा जो गांव के अंदर जो खाना बनता है, लोग जो खाना खाते हैं, जो सिंपल और जिसे हम बोलते हैं देसी खाना, उसको हम टेस्ट करा सकते हैं और उनको बनाना भी सिखा सकते हैं और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बता सकते हैं देसी खाने के। और ये मेरे हिसाब से ये कंक्लूजन करना सही रहेगा। Okay, so first of all, let me give you entire group 7 marks out of 10, and that simply means that good points have come from your side. Though systematic way में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन you people have given the points. Now let me talk individually first, and then I come to what I think should be the solution. तो रोशन ने start किया ये, and Roshan said the road construction in the village should be done, and then he said okay, promote करते हैं village products को, special product of the village, silk sari, something like that. If village produces something special, so we will promote that. He said we'll promote on Amazon, Flipkart, YouTube. So he was thinking more like selling a product of the village to increase maybe the income of people of village. Later on he said okay, we'll make it modern. GI tag की बात भी उसने किया, so he was thinking on those lines. Later on he suggested some of the advertisement modes also, NRL sponsored village, and उसका नाम थोड़ा use करेंगे. That is what Roshan said. So I'll come to the basically part of that. These were good points, but not very relevant points also to the case study. This is like increasing the business of the people in the village by selling the village product. Maybe that village is not having any special kind of product, maybe. So
पंकज सेड ओके, खाना, एजुकेशन, हेल्थ, विलेज डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। पंकज के पॉइंट्स ज्यादा रेलिवेंट थे। इंटरनेट की उसने बात की, मॉडर्न विलेज चाहिए तो इंटरनेट तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। मॉडर्न विलेज तो हम बनाना चाहते हैं, मतलब विलेज में एमिनिटीज तो हम देना चाहते हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं विलेज में। ही सेड ओके, टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे, उनको बताएंगे विलेज में रहते कैसे हैं, हाउ पीपल डू फार्मिंग इन विलेज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की तरफ भी वो बात किया उन्होंने। तो ये पॉइंट रेलिवेंट थे पंकज के। कृतार्थ ने सर्वे करने की बात की कि विलेज की, जिसको उन्होंने केस स्टडी का नाम दिया, बट द राइट टर्म इज बेसिकली द सर्वे। फिर उसने बोला कि कंस्ट्रक्शन करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा विलेज के अंदर। दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम कृतार्थ। गौतम ने ज्योग्राफिकल कंडीशंस को स्टडी करने की बात किया, इलेक्ट्रिसिटी की बात किया, रोड कनेक्टिविटी की बात किया। तो दीज वर द पॉइंट्स फ्रॉम गौतम कि हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट करेंगे, गौतम ने उसके बारे में बात नहीं किया। सुमित ने असमीज प्रोडक्ट हम विलेज में रख देंगे सारे के सारे, और वो सारी बातें की। और कुछ पॉइंट्स और सुमित ऐड करते गए जो बाकी लोगों ने भी ऐड किए थे। बबलू ने टूरिज्म के बारे में बात किया कि टूरिज्म को हम प्रमोट कैसे करेंगे, लोगों को विलेज, लोगों को हम लाएंगे कैसे वहां तक, और विलेज को डेवलप करना इसलिए जरूरी है कि वो टूरिज्म आएगा तभी विलेज डेवलप भी होगा। वी नीड टू प्रमोट टूरिज्म टू अट्रैक्ट पीपल एंड देन डेवलप द विलेज। एग्रीकल्चर एग्जीबिशन वगैरह की बात भी किया, जो बबलू ने बेसिकली समराइज करने का ट्राई किया कि बाकी लोगों ने क्या बोला है, उसके बारे में बात करने का ट्राई किया। अभिषेक डिड नॉट स्पीक मच इन द डिस्कशन। In fact, none of you could bring Abhishek into the discussion. It was your responsibility to give chance to Abhishek or bring him in. कि Abhishek, what is your point? What is the input from your side? जो ये बोलेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। In fact, group task में if you find somebody is not participating at all, there is opportunity with you to bring him in. क्योंकि जैसे तुम बोलोगे, okay Abhishek, I think you have not added any point, so what point is from your side? इतना बोलने से observer आप तुम्हें नंबर देगा, believe me. So if you find person like Abhishek who is not speaking much, so you can get mileage by bringing him in, by telling him कि Abhishek, your point, what is your opinion on this Abhishek? So far you have not given any point, so what is point from your side? ऐसा बोल सकते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन में दो लोग बाहर मैं भेज दूंगा, एक तो अभिषेक को और एक सुमित को। सुमित को इसलिए भेजूंगा कि सुमित का फ्लो में प्रॉब्लम था शुरू में, कंटेंट भी सुमित का बहुत अच्छा नहीं आया था शुरू में, और सुमित हंस भी रहे थे बीच में डिस्कशन के टाइम। सुमित और रोशन मजे ले रहे थे पूरे के पूरे। सो तुम्हें हंसना नहीं है डिस्कशन के टाइम पे, तुम्हें जो बात करनी है अपनी वो बिल्कुल फॉर्मल वे में डिस्कशन करना है, प्रोफेशनली लगे। तुम वहां बैठे होंगे ऑब्जर्वर, तो तुम उसमें हंस नहीं सकते बहुत जोर जोर से, वो अनप्रोफेशनल हो जाएगा। हंसना एक रीजन है, लेकिन वैसे भी सुमित के जो पॉइंट्स थे वो बाकियों से मिलते जुलते पॉइंट्स थे, इनोवेटिव पॉइंट्स नहीं आए, और थोड़ा पहला जीटी था शायद सुमित का, और उसने फ्लो में प्रॉब्लम रहा है उसमें डिस्कशन में, बट आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव। और अभिषेक, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू स्पीक मोर। बाकी बबलू जो है वो बात कर सकता है, उसने जो पॉइंट्स दिए वो अच्छे थे, लेकिन बहुत डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। बबलू शुड इन्वॉल्व। रोशन, तुम्हें थोड़ा सा रिड्यूस करना है अपना पेस। जब बाकी लोग बहुत बात नहीं कर रहे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, ऐसा ना लगे कि तुम्हारे ज्यादा बात कर देने से बाकियों को चांस नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। गौतम, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा बोलना है। पहले तुमने पिछले डिस्कशन में ज्यादा पार्टिसिपेट किया, फिर मैंने तुम्हें कम करने को बोला, तुमने ज्यादा कम कर दिया। अभी तुम थोड़ा सा इंक्रीज करो, ऑप्टिमाइज किए थे सर। हाँ, पार्टिसिपेट किए हैं सर। उसके बाद भी मैं, आप जो स्टार्टिंग में सर बोले, जो पॉइंट मैंने सर 7 पॉइंट बोले थे सर। हाँ सर तो मेरा ये पहला पॉइंट, जो पॉइंट बोले थे हमने सर, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के बाद रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सम गारमेंट फैक्ट्री, उसके बाद सम हिस्टोरिकल प्लेस वाज देयर। मैंने आपको वो पॉइंट बताया जो काम के हैं। गारमेंट मतलब गांव के पास सर अगर कोई अच्छा मतलब हिस्टोरिकल प्लेस अगर है तो उसको मॉडर्न तरीके से अगर बनाया जाए तो वहाँ पे भी पब्लिक आ सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है ना सर। मतलब लेकिन आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि वहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है। मतलब मे भी हो भी सकता है ना सर, ऐसा अब देखो, अगर आप अज्यूम कर लोगे कि वहाँ बहुत बड़ा एक रिवर है तब तो प्रमोट हो ही जाएगा, लेकिन ये अजम्पशन गलत हो सकती है ना।
तो आपको अज्यूम नहीं करना है कि वहां पे ऑलरेडी कोई चीज अच्छी है। इट इज लाइक दिस कि आपको स्कूल की एक टीम डेवलप करनी है ओलंपिक्स खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आप अज्यूम कर लो कि मेरे स्कूल में तेंदुलकर और सहवाग दोनों ही हैं, तो काम ही खत्म हो गया। तो आपने ऐसा कोई चीज अज्यूम नहीं करना, आपने बोलना कि देखो उसमें टास्क में, अब आपको टास्क की तरफ ले चलता हूं, और आपने जो पॉइंट्स अज्यूम करने हैं वो बड़े सोच के करने हैं। टास्क ये है, एक विलेज को डेवलप करना है मॉडर्न विलेज की तरह से। अगर तो वो हिस्टोरिकल प्लेस विलेज के अंदर है तब तो विलेज डेवलप हो जाएगा, लेकिन अगर विलेज के बगल में है तो विलेज कैसे डेवलप होगा उससे। और हमें टूरिस्ट को विलेज में लेके आना है वेयर ऑल मॉडर्न एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड। इंटरनेट दो, एजुकेशन दो, हेल्प दो, रोड कंस्ट्रक्शन करो, वाटर दो, ये समझ आता है सारा। ये विलेज में एमिनिटीज का मतलब वो हुआ कि तुम्हें हेल्थ भी देनी है, एजुकेशन भी देना है, पानी भी देना है, खाने को भी देना है, और तुम्हें इंटरनेट भी देना है। ये समझ आ गया, ये तुमने प्रोवाइड कर दी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ विलेज। उनको लाइफ देनी है तुम्हें, पर्पस वो है। अब आगे चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल। मतलब एनआरएल एक बार डेवलप करके अगर विलेज दे दे तो क्या वो हमेशा वैसे ही रहेगा? अगर विलेज के लोगों को पैसा जनरेट करने का मींस नहीं है, तो अगर तुम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे भी दो तो आगे गुजारा कैसे करेंगे? तो हमें सस्टेनेबल बनाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हमें रूरल टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। तुम वो इस केस स्टडी को ढंग से देखो। पर्पस ये था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाए, उनको मॉडर्न एमिनिटीज दी जाए। उसके लिए जो तुमने बोला कि कनेक्टिविटी देनी है सर, हमने खाना उनका जो हमें इंटरनेट बनाना है, हेल्थ देना है, एजुकेशन देना है, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। फिर उसकी इनकम कैसे आएगी? सर रूरल टूरिज्म बढ़ाएंगे। रूरल टूरिज्म होता क्या है? जब शहर से लोग गांव की तरफ आना चाहते हैं और वहां आके रहते हैं और पैसा खर्चते हैं, वो रूरल टूरिज्म है। विलेज 50 किलोमीटर है बिग सिटी से, आपने इस चीज को फोकस ही नहीं किया शायद। अगर मैं ये लाइन हटा भी देता तो आप कैसे अपना आंसर अलग देते? अगर मैं ये लाइन हटा देता तो आपके डिस्कशन में क्या डिफरेंस आता? तो आपको हर लाइन को ढंग से देखना है। कोई बड़ी सिटी है जो 50 किलोमीटर, 50 ही क्यों बोली, 500 क्यों नहीं बोल दिया, या मैंने 20 किलोमीटर क्यों नहीं बोल दिया? 50 किलोमीटर वो डिस्टेंस होता है जिसमें आदमी अगर शहर से चले, वीकेंड पे चले, तो वहां पे गांव में रह सकता है और 1 या 2 दिन के बाद वापिस आ सकता है। ये होता है 50 किलोमीटर कि मतलब डिस्टेंस एक पर्पस से दिया गया था कि 2 तरह के टूरिस्ट को तुम कैटर कर सकते हो। एक जो दिन में आए, भाई साहब रात को वापिस चले गए। जैसे स्कूल का ट्रिप 50 किलोमीटर में हमने स्कूल को रूरल टूरिज्म करवाना है, स्कूल के बच्चों को पिकनिक करवानी है। कहां पिकनिक करवाओगे? जहां फ्रेश एयर है, जहां फ्रेश वाटर है, जहां नेचुरल एम्बियंस है, नेचुरल इकोसिस्टम है। बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बड़े शहर के स्कूल के बच्चे उस गांव में लाए जाएं, जिनको हम जानवर दिखाएं। विलेज में जानवर भी होते हैं। दूध के लिए तुम लोगों ने बात किया तो तुम दूध के लिए जानवर रखोगे, तुम और भी जानवर रखोगे। शहरों में नहीं होता है, छोटा मोटा जो गांव की सेटिंग में जो जानवर होते हैं। तो विलेज जो शहर के बच्चे हैं, सवेरे आए शाम को वापिस चले गए। दूसरा टूरिज्म जो रात को भी वहां रहा। तो तुम्हें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, टूरिज्म, ऐसे 2 तरीके से टूरिज्म को देखना है। आप कैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो टूरिस्ट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या देखने के लिए आएगा। सो नाउ systematically when you want to move for this, what you have to say is we need to develop some amenities for the people of village. NRL is going to do that. That includes school, health center, maybe some kind of shops, maybe some infrastructure for playing, so that they lead quality life, and internet also. Now source of income of people should be from tourism, so let's develop it. For tourism we will create ecosystem. People want to come and relax. How you will promote the tourism? People will come to see the village life, so we will make it typical village life. They can see the panchayat, they can see the animals,
they can see the farms, they can see the water, they can see other things which we can provide in the village. They will come there to have fresh air, get relaxed, get fresh water, food, and some kind of playing games. Three kind of tourists we can target. Tourist number one, school children. So some kind of games are to be created for kids. When they come there for picnic, entire day they play. Let's create that playing infrastructure for school kids. Second, tourist who are coming from some kind of, team building exercise from some corporates or companies, team building exercises. Let's make ambience infrastructure for them, food, beverages, everything. Tourist number three, who will come there to relax and stay there for a day or two. These three kind of tourists we can target. Because it is 50 kilometers from the big city, we can target these three kind of customers. If it is on the highway, suppose village is very close to highway. Now that is the assumption you can make. If it is on the highway, so highway traffic, people moving on highway can also be a source of income, where they can stay for some time to have food. That can be the fourth customer for us. तो अभी तुम्हारे पास 4 तरह के कस्टमर हो गए. अगर ये हाईवे के पास है तो जो भी ट्रेवल कर रहा है वो हाईवे पे रुका, विलेज में गया, खाना वाना खाया. नंबर 2, स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आए. नंबर 3, कॉर्पोरेट कंपनीज के लोग टीम बिल्डिंग करने आए. नंबर 4, लोग रुकने के लिए आए. और हर एक अपना बड़ा पर्पज है. कुछ विलेज लाइफ देखने आ रहे हैं, कुछ रिलैक्स करने आ रहे हैं, कुछ पिकनिक करने आ रहे हैं, कुछ गेट टुगेदर करने आ रहे हैं सीरीन एनवायरनमेंट के अंदर. ऐसे हम प्रोसीड करेंगे. तो एनआरएल का काम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसके बाद सस्टेनेबल खुद होंगे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, रूरल टूरिज्म. दैट इज द पॉइंट. जैसे सुमित आसामी प्रोडक्ट्स बोले थे, लेकिन सुमित एक चीज तुम समझो, जो विलेज है वो भी असम में है और जो शहर से लोग आएंगे वो भी असम में है. तो शायद वो असम की चीज देखने ना आए. ये बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, ये शहर के लोग ही आ रहे हैं. एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? नो सर, एक पूछना था. जैसे पूरा डिस्कशन जैसे हिंदी में चल रहा था तो मैं बीच बीच में इंग्लिश में बोल रहा था, तो इज इट एक्सेप्टेबल? हाँ, इट इज एक्सेप्टेबल. यस यस, इट इज एक्सेप्टेबल. सर अगर ऐसा हो कि ग्रुप में 3 लोग जैसे हिंदी में बोल रहे हैं, 2 लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उसमें से क्या मतलब जो लोग हिंदी में बोल रहे हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अगर सपोज सारे लोग हिंदी में बोल रहे हैं और एक आदमी इंग्लिश में बोल रहा है, हाँ. और जो इंग्लिश में बोल रहा है वो हिंदी में बोल सकता है, हाँ. तो बाकी हिंदी बोलने वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चे, इसलिए वो टीम से बाहर हो जाता है ऑटोमेटिकली. तुम्हें टीम का पार्ट रिफ्लेक्ट करना है अपने आप को कि तुम टीम के पार्ट हो. और सर जैसे कि इन केस इसके अभी मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये फील किया कि जो पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे थे मैं उन्हें बोलना चाह रहा था एट ए टाइम, बट वो पॉइंट मुझसे पहले कोई बोल गया. तो उस केस में मेरे पास कोई नया पॉइंट इनोवेटिव बचा नहीं बोलने के लिए. तो व्हाट कैन आई डू एट द सिचुएशन? कि देखो ऐसा होता है सुमित, जब तुम पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे पॉइंट्स जो है खत्म हो गए हैं और किसी ने बोल दिए हैं. लेकिन तुम या तो उन्हीं पॉइंट्स पे आगे एक्सटेंड कर सकते हो या कुछ नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. यही तो प्रैक्टिस है. और जैसे कि सर अभी जिस टाइम पे लास्ट में रोशन कंक्लूड कर रहा था हमारे जीटी को, तो उस टाइम में मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हम प्रमोशन फिल्म्स होती हैं तो उसको हम यूट्यूब में चलवा देते हैं. तो 2 से 3 मिनट की फिल्म होती है और उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर आदमी देखता है कि अच्छा हाँ वहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं. तो वो लोग भी अट्रैक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं और टाइम बिंग पीपल्स जो विजिट कर रहे हैं आसाम को वो चाहेंगे कि हाँ एक नया प्लेस है वहाँ पे भी हम जाएं और चीज़ों को देखें, जिससे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों तरीके से टूरिज्म डेवलप हो सकता है. और शायद इन सोर्स ऑफ इनकम जो पीपल्स वहाँ रहने वाले हैं उनका और बढ़िया हो जाएगा पहले कंपेरिजन में. सही है. वो ठीक है. जो प्रमोशन आपने बताया कि यूट्यूब पे ऐड चलवा देंगे या हम माउथ स्प्रेड जो होगा ना, माउथ स्प्रेड जो होती है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है. तो नो डाउट मैंने आपको 4 तरह के कस्टमर बताए, उन कस्टमर्स को पता लगना स्टार्ट होगा. और ऑब्वियसली वो जहाँ पे हाईवे है वहाँ पे साइन बोर्ड लगाएंगे
और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। वो प्रमोशनल ऑप्शन जो है वो सही है आपने जो बताई। और सर जैसे कि अभी हम और रोशन बात कर रहे थे, एक मिनट, हेलो गो हेलो, अहेड हाँ सुमित। सर, हाँ सर, जब अभी हम और रोशन बात कर रहे थे तो हाँ वहाँ पे हमारा डिस्कशन थोड़ा इनफॉर्मल हो गया था, हम हंसने लगे थे। अगर इनकेस ऐसा सिलेंडर क्रिएट हो जाता है तो व्हाट शुड आई डू नाउ? आपको हंसना नहीं है, बस हंस क्यों रहे थे? हाँ तो ब्लेंडर हो गया सर तो वो एडवर्टाइजमेंट की ब्लेंडर काफी हो गया तो मतलब, निकाल देते हैं, और क्या है, वो हंसना ऐसे थोड़ी अलाउड होता है। हाँ सॉरी सर। सर मेरा बता दीजिए, सर मेरा बता दीजिए सर, कुछ आपने मेरा नहीं हाँ बताया। कृतार्थ, मैं और वही बोल रहा था कि जो केस स्टडी की जगह तुमने सर्वे वाला पॉइंट अच्छा यूज किया था, और आपने जो सर 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 मैं एक पॉइंट वो और वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं, जैसे कि किसी ने बताया था कि वहाँ पे लॉजिंग में धर्मशाला एंड ऑल ये बोल रहे थे, हाँ, तो ये जो धर्मशाला लॉजिंग वाला था ये भी अच्छा था, क्योंकि स्टे के लिए फैसिलिटी बनानी पड़ेंगी, ये मेरा स्किप हो हाँ गया। नहीं नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अब बाहर से लोग आते हैं, अगर कोई टूरिज्म पर्पज से आए तो धर्मशाला आई थिंक इट नॉट, मतलब अच्छा पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे हम छोटे छोटे होटल्स बना सकते हैं और हट्स, उन्हें, उनको हट्स बोलते हैं, हट्स। हाँ हट, हाँ लाइक हट। और जैसे कि जो फैसिलिटीज इस टाइम पे जैसे कि ओयो प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई नई जो बिजनेस कंपनी है इसमें हम उनसे टाई अप कर सकते हैं और कंसेशनल प्राइस में हम अच्छे क्वालिटी के लॉजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि लोग वहाँ पे आए, उनको रहने में आसानी रहे। तो इजिली पीपल, जब लोग सोचेंगे कि हाँ रहने के लिए आसान प्लेस है, और जैसे कि कोई बिजनेस करने आ रहा है, मतलब बिजनेस टूर पे आया हुआ है और उनको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए और इको फ्रेंडली एटमोसफियर चाहिए, तो वहाँ पे आके आप अगर चीफ कॉस्ट में होटल्स या फिर कुछ मिल जाता है तो आदमी लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा, जिससे बिजनेस और बढ़ेगा वहाँ का। देखो आप लिंक कर सकते हो इसको कि अच्छा वाईफाई अगर प्रोवाइड करोगे तो लोग वहाँ, वर्क फ्रॉम होम कल्चर अब स्टार्ट हो गया है, हाँ तो आईटी सेक्टर में लोग 10-10 15-15 दिन चले जा रहे हैं कहीं, जैसे जैसे कि सर गोवा चले गए। उत्तराखंड में लोग क्या बोलते हैं लॉन्ग टाइम के लिए इस टाइम होम स्टे लेते हैं, होम स्टे टाइप का, जैसे कि वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। यस, दैट इज अ गुड आइडिया एक्चुअली। तो वहां से काम किया जा सकता है अगर वाईफाई वगैरह है तो। ओके सर, अब मेरे कुछ क्वेश्चन थे सर। हाँ, मैं सर ये पूछ रहा था जिस तरीके से यहाँ पे अभी जीटी हुआ, एग्जैक्टली ऐसे ही वहां पर भी हमारा होने वाला है, मतलब कि बोलने के लिए सभी को बीच में बोलना है। बोलते तो सब साथ में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सर ज्यादा क्योटिक होता है, वहां पे ज्यादा डिसिप्लिन होगा। क्योंकि मैं वही सर कहना चाह रहा था, क्योंकि जैसे कि अगर सभी बोल रहे हैं मौका, एक्चुअली जीटी का जो मैं मीनिंग समझता था वो यही समझता था कि हाँ चलो सबकी राय चाहिए हमें एक टॉपिक के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर सही डिसीजन लेना है हम लोगों को। बट इस तरीके से बीच में से जब बात काटते हैं सभी लोग, तो ये तो एक तुम तरीके बबलू से इस पे फोकस करो कि तुम कंटेंट क्या ऐड करोगे, तुम इसकी कंटेंट ऐड प्रैक्टिस करने करते के। जाओ। जी सर, मैंने एक्चुअली इस सिचुएशन को पूरी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, उसके बाद कनेक्टिविटी, एंड थर्ड कनेक्टिविटी के बाद जो टूरिज्म आएगा उसके लिए फैसिलिटीज। इस तरीके से मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। तो मैं पूरे पॉइंट्स बोल ही नहीं पाया था, इससे पहले बीच में बोलने लगे थे। बट एक्चुअली अगर मैं जीटी का जो मीनिंग समझता था उसमें सभी को बोलने का तो मौका मिले पूरे अपनी बात कंप्लीट करे एक आदमी, फिर दूसरा शुरू करे, या ऐसे एक्चुअली ही में वहां क्या पर होता भी है, होगा। एक्चुअली में तुम्हें दोनों ही सिचुएशन मिल सकती हैं, कुछ क्योटिक भी होते हैं, जैसे 2-3 ऐसे लोग होंगे वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देंगे किसी को। ऐसे टाइम के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अपनी बात रख सकें, नहीं तो एग्जिट हो जाओगे। एक्चुअली सर इससे पहले मैंने 2 साल अभी वहाँ काम किया, एक 5 स्टार होटल में, रेडिशन ब्लू में। तो वहाँ दरअसल हमें सुबह ऐसे कोई भी टास्क दिए जाते थे तो हम लोग ब्रीफिंग और थोड़ी सी मीटिंग सुबह 10-15 मिनट की किया करते थे। तो वहां तो ऐसे अगर कोई भी बीच में टोकता था तो चाहे भले ही उसका पॉइंट अच्छा होता था, उसके बाद भी उसे बदतमीजी समझा जाता था। क्योंकि जब तक एक का कंप्लीट ना हो बात, तब तक बीच में दूसरे का टोकना एक, मैं उसी वे में मैं यहाँ पे चुप बैठा रहा जब दूसरों के बीच में चल रही है बहस, तो मैं बीच में जंप नहीं किया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी क्या है कि वहां पे जो बबलू एक डिफरेंस है, एक तो वो ऑलरेडी जॉब है, जब तुम चले गए वहां, जब यहाँ पे भी एनआरएल के अंदर डिस्कशन होगा तो वैसे ही होगा जब तुम एम्प्लॉय बन जाओगे, क्योंकि फिर तुम बोलोगे नहीं। जब यहाँ पे अभी योरपीडिया पे जब तुम बात कर रहे हो तो तुम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो बोलने की, तो हर आदमी बोलेगा। जब तुम एनआरएल में जाओगे तो इतना नहीं चिल्लाता है कोई आदमी, इतना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां उसको डर होगा निकाल ना दे मेरे को, तो वहां स्मूथ होगा। लेकिन उससे भी वहां पे भी हो सकता है, लेकिन जब तुम ऑलरेडी जॉब में चले गए कहीं, तो तुम्हें पूरा मौका मिलता है टाइम का, तुम जल्दी में नहीं होते, तुमने नौकरी थोड़ी लेनी होती है, यहाँ नौकरी की फाइट चल रही है, वहां तो ऑलरेडी नौकरी में हो। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में।
तो इसलिए सर इसमें भी बीच में जैसे मेरे मुंह से निकल गया था कि लेट मी कंप्लीट माय दिस, लेट मी कंप्लीट दिस, अगर इस तरीके की कोई लाइन बोलूंगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालेगी नहीं वहाँ? नहीं, पर बहुत बार नहीं बोलना है। देखो ऐसा अच्छा। है कि बोलने का मौका तो सबको मिलता है और ऑब्जर्वर जी सबकी बातें सुनता भी है। जी तुमने सर। बस अपने काम की बात कंप्लीट कर देनी है, बस ये ध्यान रखना। जी सर। तुम अपनी काम की बात कंप्लीट कर दो, वहां मौका पूरा मिलेगा तुम्हें बोलने का। अगर कोई बहुत बोल रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट होगा। पर जी अगर सर। उसके चलते तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम भी एलिमिनेट हो जाओगे। तुम्हें बोलना है बस। तो ओके। ये सर चीज मैं है। सर सर मैं ये मुझे पूछना एक छोटा सा पॉइंट पूछना था। हाँ, सर ये मेरा सेकंड जीटी है और दूसरे भी बार आपने मतलब थोड़ा ये कहा कि मेरे पॉइंट थोड़े इरिलेवेंट होते हैं, तो मे बी ये मेरी प्रैक्टिस ही है कि इरिलेवेंट सोचना। तो इसको इलिमिनेट या कम कैसे करूं? मतलब ये अगर मैं मतलब इसके पहले भी आपने जीटी दिया था स्कूल फाइट वाला, तो मैंने वो पिज्जा पार्टी वाला एक ऑप्शन दिया था, उसने अब बोला कि वो इरिलेवेंट है। आज भी मेरे कुछ पॉइंट मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ इरिलेवेंट थे, पर वो फ्लो में निकल जाते थोड़े इरिलेवेंट पॉइंट। तो मेरे ख्याल से इरिलेवेंट को जल्दी में रिलेवेंट आपने बोल करने दिया का ना क्या? रोशन, आप जल्दी में थे कि आप इंट्रोड्यूस कर दें। हाँ थोड़ा। आप वो जीडी के लिए ठीक है, जीटी के लिए नहीं। जीटी में क्या है, जब तक काम की बात नहीं है तब तक मुंह नहीं खोलेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो इसमें पंकज दूसरे नंबर पे बोला, यस तो पंकज रेलिवेंट ज्यादा पॉइंट बोल गया। तुम पहले पॉइंट पे जल्दी के चक्कर में तुमने बोल दिया सारा, तुम्हें वो ओपन भी करना था। तो तेजी की वजह से रिलेवेंसी निकल तेजी गई। की वजह से और सारी चीज बताने के चक्कर में तुमने इररेलेवेंट भी बोल दिया। ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो जीडी कंक्लूड करेगा लास्ट में या फिर जो जी स्टार्ट करता है, तो क्या उनके मार्क्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं क्या? देखो ऐसा कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो देता नहीं है, और जीटी जहां तक मैं समझता हूँ वहां तक इंडिविजुअल एलिमिनेशन है, लेकिन मार्क्स सबको बराबर मिलते हैं। इसीलिए ग्रुप टास्क का ये मतलब होता है। अदरवाइज अगर इंडिविजुअल मार्क्स मिलने लगे तो हर कोई चढ़ चढ़ के बोलेगा ग्रुप जैसे टास्क जीडी में होगा ही होता नहीं। है, जैसे जीडी में जीडी में होता है तो इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल होता है हाँ। जीडी में इंडिविजुअल। वहां पे रेस होती है। वहां पे हर आदमी ने ऊपर चढ़ना होता है, दूसरे को अच्छा। नीचे करके। जी यहाँ सर। साथ में दौड़ना होता है, हाथ पकड़ के। तो तो मतलब सर सर सबको एक ग्रुप को पूरे को सबको मार्क्स सेम मिलेंगे जो सेम भी होगा? मिलेंगे, अच्छा सेम जो मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि सर अभी आपने बोला कि मैं और उससे मतलब हमारे पॉइंट एक तो अप्रोप्रिएट नहीं थे, या फिर चीजें थोड़ा हट के बोली हमने या फिर किसी ने नहीं बोली, तो उस केस में हमारा इम्पैक्ट पूरे ग्रुप पे पड़ने वाला है, हमारे हाँ ना बोलने का तो इम्पैक्ट पूरे ग्रुप पे पड़ने वाला है। हाँ, मतलब जो नंबर दिए मैंने 7-10 में से, वो सारे जो पास हो गए उन सबको 7 मिलेंगे। अच्छा, और हमें और इन दोनों को कोई मार्क्स तुम नहीं मिलेगा? एलिमिनेट हो जाओगे, तुम और एलिमिनेट हो जाए, अभिषेक एलिमिनेट हो जाओगे। हाँ, एलिमिनेट हो जाएंगे। तुम बाहर चले सर जाओगे और आप बाकी बाकी 4 सर बच्चे बच गए। सर मेरा सर जो मेरा बता रहे सर, हम्म, अभी हाँ यस बता। तो मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं ये यस सर, पूछ रहा आप था मेरा कि बता रहे थे सर, नहीं बता पा रहे मेरे बारे में सर। नहीं बता दिए कृतार्थ तुम्हें, मैंने सबसे पहले तुम्हारा ओके ओके। बताया तो है कि केस स्टडी सर्वे वाला अच्छा पॉइंट था तुम्हारा, और अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन सर। वाला। सर जैसे कि सर अभी सर मैं एट लास्ट में ऐड करना चाह रहा था। लेट कृतार्थ कंप्लीट। हाँ बोलो कृतार्थ। हाँ सर, सर ये पूछना सर, मैंने आपका अपना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आपको व्हाट्सएप किया था सर, तो सर आप सर देख लीजिएगा सर क्या क्या पॉइंट्स यू उसमें कम टू ऐड कर एचआर सकते हैं। कृतार्थ, प्लीज कम ओके टू एचआर, देयर वी विल डिस्कस। ओके ओके सर, ओके चलो सर, थैंक लेट्स यू। नो फिनिश इट अप। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, फोकस ऑन दोस पॉइंट्स, और जो सॉल्यूशन दिया है और बाकी जो जीटी पढ़े हैं उनको भी रिवाइज करो एंड इंक्रीज योर कंटेंट। Some of you have given very good content. Some of you have talked relevant. Some of you have not talked relevant. So how you will start talking relevant is आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है, जीटीज करने हैं, फिर आपके रेलिवेंट पॉइंट। अगर किसी कोई रेलिवेंट पॉइंट आप में से दे रहा है तो आप भी दे सकते हो। आई हैव नो आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि सर मैं रेलिवेंट पॉइंट मैं नहीं दे पा रहा हूं तो मैं क्या करूं। उसके लिए ओनली तुम्हें सोचना पड़ेगा, ओनली तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 170 180 जीटी पड़े हुए हैं, उनको गो थ्रू करो। उससे तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न सेम जो अभी मैंने जीटी किया ऐसा पहले आईयूसीएल में हो चुका है, एग्जैक्टली सेम आईयूसीएल का एक्चुअल जीटी है। इससे थोड़ा सा मैं वो डिफरेंट है, बट ऐसा ही आ चुका है बिल्कुल। तो वो पहले है वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है सारा, जस्ट प्रैक्टिस इट। वही करो, एक्चुअल में वैसे वैसा वहां पे आ जाएगा। राइट, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।